بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کارکردگی سال کے ختم پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کا شکر گزار کرتے ہیں کہ اس نے آج یہ گھڑی دکھائی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ یقیناً ان کے پیچھے ہمارے مشفق و مربی اساتذہ کی محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، رات دن ان کی علمی لگن، علمی مگن اور اپنا ہنر نچوڑ کر کے طلباء میں منتقل کرنا الحمدللہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ یہ عاجز فقیر تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہے، جتنے بھی یہاں مہمان آئے ہیں پورے سال بھر میں انہیں ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس عاجز فقیر محمد امین کو، معین العلوم گوگاواں کو جو مدرسین کا اسٹاف ملا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا ایک خصوصی دین ہے، اللہ کی ایک خصوصی دین ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی کام اس عاجز فقیر نے میرے استادوں کو انتظامی اعتبار سے سپرد کیا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے تعلیمی اعتبار سے ان کے حوالے کیا، الحمدللہ بحسن خوبی بہت اچھے طریقے سے نبھاتے رہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ ایک پریوار کی طرح رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ہمارے دارالعلوم کا، کہ ہمارے استادوں نے ہمارے بچوں کو کیسے سراہا ہے، کیسے تراشا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ شام کا وقت، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، طلباء اپنے اپنے پیسوں سے، اپنے جیب سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہاں بنتی ہیں، وہ خرید کر کھاتے ہیں، سموسہ ہے، کچوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے مدرسے کا پڑھنے والا یہاں کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس طالب علم سے پوچھا، بیٹا کیوں، کیا ہوا، کچھ سر درد ہے، کیا ہے؟ تو کہنے لگا، ناظم صاحب میں پیسے ابا دے کر گئے تھے، 20 روپے خرچ ہو گئے، 100 روپے دے کر گئے تھے، 80 روپے میرے کہیں جیب سے گر گئے۔ یہ نہیں کہا کہ چوری ہو گئے، میرے 80 روپے جیب سے گر گئے۔ میرے جیب میں جو بھی تھا ان کو دیا، بیٹا جو بھی ہے کھا لو۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کی آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، میں نے طلباء میں اعلان کیا کہ ایک طالب علم کے پیسے گم ہو گئے ہیں، اگر کسی کو ملے ہیں تو مجھے پہنچا دینا تاکہ میں اس بچے کو دے دوں۔ اللہ گواہ ہے، یقین مانو 50 سے زیادہ بچوں نے پیسے مجھے آ کر کے دے دیے، 50 سے زیادہ بچوں نے پیسے آ کر کے دیے، ناظم صاحب اس بچے کو دے دیجیے، مجھے ملے ہیں۔ ناظم صاحب اکیلے اکیلے آئے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ میرے ان بچوں کو جزائے خیر دے، میرے ان اساتذہ کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے کتنا بہترین تراشا ہے۔ 50 سے زیادہ بچوں نے پیسے آ کر کے اس یہ کہہ کر کے دیے کہ مجھے وہ پیسے ملے ہیں۔ یہ ہے میرے استادوں کی محنت، اور اس کے پیچھے میں بہت ادب اور دل کی گہرائی سے میں اپنے منتظمین کا بھی بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ قدم بقدم، شانہ بشانہ، جب بھی دارالعلوم کے اندر مالی تعاون کی ضرورت پڑی یا کوئی انتظام کے لیے ضرورت پڑی، وہ کشا کشا رہے، ہمارے پاس آتے رہے، اپنا قیمتی وقت اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر کے، جیسے منگل کا وقت یہ بازار کا وقت ہے، ایسے وقت میں بھی جب بھی اس عاجز فقیر نے ان احباب کو فون لگایا، الحمدللہ دورے چلے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی گاؤں کے لوگ، کھرگون کے لوگ، اطراف کے لوگ، پورے ایم پی کے لوگ الحمدللہ اس دارالعلوم کے اندر تعاون کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، اپنی شائع نشان اجر جزیل بھی عطا فرمائے۔ لیکن یہ عاجز آپ کے سامنے ایک بات اور کر رہا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارا دارالعلوم الحمدللہ صرف علمی سطح پہ کام نہیں کر رہا ہے،
असरी सतह पे भी काम करना शुरू कर दिया है। और ये साल अल्हम्दुलिल्लाह 1 से लेकर 8 तक की स्कूल इंग्लिश मीडियम की परमिशन मिल गई, और आप लोगों के ताउन की बरकत से, आप लोगों की दुआओं की बरकत से हमने शुरू भी कर लिया और 1 साल ख़त्म भी हुआ अल हयात एकेडमी के नाम से। जाहिर सी बात है कि इल्मी और असरी दोनों जब जमा होंगे तो खर्च बढ़ना है, लिहाजा मैं अतराफ़े गोगावा और गोगांव वालों को मैं खास करके अदब अर्ज करूंगा कि इस साल भी दारुल का ख्याल रखना है, खर्च पहले से भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाया। हमारे बहुत सारे मुखलिस दोस्त ने भी माशाल्लाह बीच बीच में मौसम के मुताबिक तलबा का ताउन किया। कैसे? गर्मी के सख्त ज़माने में रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद ठंडा शरबत तलबा को पिलाया है, मदरसे की जानिब से नहीं, कुछ साहिब खैर ने अपनी तरफ से महसूस किया। ये भी एक ताउन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। ठंडी के मौसम में दूध हल्दी वाला ये तलबा को पिलाया है, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। खैर वक्तन फ़वक्तन मौसम के एतबार से तलबा के मुआविन बने हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो अर्ज़ कर रहा था असातिज़ा की तालीमी मेहनत बहुत अच्छी रही। इब्तिदाई साल में हमने 550 तलबा पर दाखिले को बंद कर दिया था। वजह आप लोग जानते हैं कि हमारे पास रहाइश के लिए, सुलाने के लिए, तलबा को सुलाने के लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं है, जहां पढ़ते हैं वहीं सोते हैं और सब पैक हो चुका था। इसलिए हमने मजबूरन बाद में आने वालों को मना कर दिया था कि हम आपके बच्चों की रहाइश का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। आइंदा अज़ाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम एतबार से हमारे असातिज़ा रवादवा रहे, अच्छे मुहादिक रहे। नतीजतन मैं आपको बताता हूँ, इस साल भी औरंगाबाद में जामिया के शाखों के दौरान कंपटीशन हुआ, मुसाबका हुआ, हरीफाई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मईनुल उलूम गोगावा के तलबा अव्वल पोजीशन पर रहे अल्लाह के फजल करम से, और मजमूई एतबार से 3रे नंबर पर इदारा रहा जामिया की शाखों में। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पिछली मरतबा पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं, करीब 58 मदरसों ने हिस्सा लिया था। इन 58 मदरसों ने भोपाल में जाकर के हम लोग गए थे और हमारे तलबा को लेकर गए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बरकत से और आप लोगों की तवज्जुहात की बरकत से और हमारे असातिज़ा की जहदों और कोशिशों की बरकत से पहले नंबर की पोजीशन पर अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यही बात नहीं, नतीजतन मैं कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा मज़ाहिर उलूम गए, दाखिला अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया, वरना आमतौर पर मज़ाहिर उलूम में होता नहीं है। ऐसे ही दारुल उलूम देवबंद में भी हमारे तलबा गए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी उनका दाखिला अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। तो ये हमारे असातिज़ा की मेहनतें हैं। और जैसे कि अभी मौलाना नसीर साहब ऐलान कर रहे थे कि पिछले सालों में भी ऐसे कई तलबा रहे हैं कि जिन्होंने एक ही बैठक में कुरान शरीफ सुनाया है। एक ही बैठक का मतलब ये है कि अब फजर से लेकर बैठे और पहला पारा पढ़ना शुरू किया, बीच में पेशाब पानी के लिए वक्त दिया जाता था, अब वो फिर आकर फिर जहां से बाकी था शुरू किया। ऐसे शाम तक रात तक में एक ही बैठक में पूरी मजलिस के अंदर 30 पारों को मुकम्मल सुना दिया। ऐसे भी कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपने सोशल मीडिया के हवाले से आपने एक सुना भी होगा कि मज़ाहिर उलूम में एक तालिब इल्म ने बुखारी शरीफ को ज़बानी याद किया है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोइनुल उलूम गोगावा ही का तालिब इल्म था जो यहाँ से मज़ाहिर गया था। उसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम में मोइनुल उलूम का नाम रोशन किया है। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए। तो 550 तलबा शुरू के अंदर थे, आखिर में होते होते 450 रह गए और अभी जब इम्तिहान दिया तो 432 तलबा है। आइंदा का क्या है हमारे मुफ्ती साहब आपको सुनाएंगे, लेकिन यह है कि बाहर आप लोगों से दुआ के लिए कह रहा है कि अभी भी हमारे पास इंतज़ाम कम है, उसके आगे के अज़ाइम भी आप लोग दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उसे पाए तकमील तक पहुँचाए। मैं बड़े जिनको याद न करूँ तो बड़ी बेवफाई होगी। आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो मंजिला है, सफ़ेद बिल्डिंग जो है, हमारे एक अजीज हर दिल अजीज हाजी इब्राहिम साहब कासमरी, जिन्होंने एक ही फोन पर अपने जिम्मे पूरी रकम ले ली। इस 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले 26 जनवरी का जब हम प्रोग्राम करने जा रहे थे, स्टेज भी सजा हुआ था और मोबाइल की घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही गमनाक खबर सुनाई कि हाजी इब्राहिम साहब कासमरी जिन्होंने मदरसे में आपकी बिल्डिंग बनाई, अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि
फ़इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मजलिस को ख़त्म होने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब कर दे। और इस तरीके से मैं अपने खादिमों को भी नहीं भूल पाऊँगा, अपने मदरसे के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं और जितने भी मदरसे को ताउन करने वाले हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखने वाले हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और ख़ुसूसन मैं मेरे रफ़ीक़ मोहतरम, मेरी शान, मेरी आन, मेरी जान हज़रत मुफ्ती साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में शाना बशाना रहे, और जब भी कोई काम का हमने बेड़ा उपाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी भी मना नहीं किया, और साथ मेरे खड़े रहे और हिम्मत देते रहे कि हम सब मिल करके काम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह कर देगा, अल्लाह हमारे साथ है। उनके कलिमात इस आजीज़ को हौसला बख्शते रहे, हिम्मत देते रहे, और उन्हीं की ये बदौलत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चमन माशाअल्लाह खुशबूदार और महक रहा है। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए और उनका साए इल्मी हम पर तादिर कायम फरमाए। साथ जाते जाते मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं एक मरतबा मैंने अपनी अम्मी से फ़ोन पर कहा जब गुजरात में थे, अम्मी मेरा दिल नहीं लगता है, आप दूर हैं, मैं आपके पास आ नहीं सकता हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा दीन के काम के लिए आप गए हैं, मैं वहाँ आ जाती हूँ, आप यहाँ ना आए, और वहाँ आप ये ना कहें कि मैं वहाँ से आ जाता हूँ, मैं आ जाती हूँ। मेरी अम्मी बूढ़ी थी लेकिन साल में 2-3 मरतबा यहाँ पर आते थे और मेरे पास रहते थे, बड़ा दिल को सुकून मिलता था। और हमेशा पर्दा उठाकर, खिड़की का पर्दा उठाकर तलबा को देखकर हमेशा कहती थी माशाअल्लाह कितना अच्छा है ये माहौल है, काश कि यहाँ मौत मुक़द्दर हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ भी फरमाई, यहीं पर जहाँ बहक हुई और यहीं पर दफन हुई। उलमा से बहुत मोहब्बत करने वाली, उनके जनाजे में सिवाय उलमा और हुफ़ाज़ के और कोई नहीं था लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो भी थे उलमा थे, हुफ़ाज़ थे। मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और आला इल्म में अल्लाह ताला जगह नसीब फरमाए। उनकी दुआओं को मेरे लिए खुसूसन हम सब के लिए उमूमन अल्लाह ताला कायम दायम फरमाए। मैं आखिर में जाते जाते आप लोगों से यही कहूँगा कि रमज़ान मुबारक सामने आ रहा है, आप मुईनुल उलूम गोगावां का अपना मदरसा, अपना महबूब इदारा समझ करके ताउन के अंदर तवज्जो फरमाए। अल्लाह ताला आपके इस मोहब्बत को बेइंतहा कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।